Hello everyone, good morning students. We are discussing chapter number 7, System of Particles and Rotational Motion, in which in the last video we have discussed about center of mass and motion of center of mass. Today we are here to discuss about center of mass of ring, disc, sphere and thick rod. लास्ट क्लास में बच्चे हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? हमने थिन रोड का सेंटर ऑफ मास डिस्कस किया था. आज हम बात करते हैं रिंग का, डिस्क का, स्फीयर का और थिक रोड का सेंटर ऑफ मास क्या होता है. तो बेटा हम यहाँ पर सिमेट्री का अप्लाई करेंगे. होमोजेनियस रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है और कोई भी थिक रोड है या कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है. ऐसी जो भी अपनी बॉडी होती है उनके लिए हम सिमेट्री अप्लाई करके उनका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं. For such type of all bodies, you can take any element, any mass element at any point P, that is x, y, z, and by symmetry you can take any other mass element at point minus x, minus y and minus z. Then हमने point of reflection symmetry ले लिया है. तो अब हम क्या देखेंगे कि उनका जब हम इंटीग्रल करेंगे, बेसिकली जब मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था, then I told you that any general formula of position of center of mass can be given as weighted mean. It means mi xi upon summation mi. When you will add here the x coordinate, then you will get dm into x plus dm into minus x. So you can say that x dm minus x dm, that will cancel out. So the integral of any term, like you can say x, y and z, that will give you 0. So integral will be 0. It means center of mass is at point 0, 0, 0, and the geometrical center is also at point 0, 0, 0. So you can say that in such type of body, geometrical center will coincide with the center of mass. Like ये हमारा कोई रिंग का एग्जाम्पल है. ये हमने इसका y एक्सिस लिया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, और यू कैन से हेयर सेंटर ऑफ मास. ये लाइक हमने जो ये पॉइंट डिस्कस किए, हम एक बार फिर से इसको देखते हैं. हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ पर एक्स वाई जेड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं. एम मास या डीएम मास का पार्टिकल है रिजिड बॉडी के केस में. यहाँ पर हमने माइनस एक्स, माइनस वाई, माइनस जेड का कोऑर्डिनेट ले लिया है. अगर अब हम उसका इफ वी हैव टू फाइंड आउट द x coordinate of center of mass, then what you have to do? X into dm plus minus x into dm, that will cancel out each other. It means x coordinate will be 0, so you will get 0. In the similar way, when you will go for the y coordinate, y into dm plus minus y into dm, it will also give you 0. So center of mass will give you 0, 0, 0. That's why we are saying here that center of mass is coinciding with geometrical center. The next part is disc. इस केस में भी आपका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर से क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा. नेक्स्ट स्फीयर है और थिक रोड है. इन सभी टाइप में जैसे मैंने आपको रिंग के केस में एक्सप्लेन किया है, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? डिस्क, सर्कुलर स्फीयर और हमारा थिक रोड के केस में भी यही केस एग्जिस्ट करेगा. तो अब इससे आगे हम देखते हैं बेटा, अप टू टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट different shapes and their center of mass. Now when we are applying any force on a particular body, then the whole body is going in any particular direction in which we are applying the force. So what you have to say that center of mass is also moving in that particular direction in which the force is applying. So you can say that सेंटर ऑफ मास जो हमारा कोऑर्डिनेट था उसको हमने पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे देखा था बेटा? कैपिटल आर वेक्टर इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट कैन बी गिवन एज एम आई आर आई अपॉन समेशन एम आई. Summation mi will give you capital M, that is mass of the whole body. When you will cross multiply these two terms, then m into r vector, that will give you I equal to 1 to n mi into ri vector. नेक्स्ट है आपका, जब आप इसको ओपन करके लिखेंगे, then what you will get? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस mn rn वेक्टर. सो अब हमें चाहिए बेटा मोशन. जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है देन डेफिनेटली इट विल हैव सम वेलोसिटी. वेलोसिटी के लिए हम पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? व्हेन वी विल डिफरेंशिएट द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट फैक्टर विल गिव यू द वेलोसिटी. सो we have to differentiate this equation with respect to time. Then m is constant throughout
m1, m2, mn are also constant when the body is moving. So m will come out of differentiation. The remaining term will be m into dr by dt is equal to m1 dr1 upon dt plus m2 dr2 upon dt plus mn drn upon dt. लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या देगा बेटा, dr upon dt will give you the capital V. Capital V is here velocity of center of mass, that is m into capital V will give you mass into velocity of center of mass, that will be equal to m1 v1, that means mass of the first particle into में velocity of the first particle plus m2 v2 plus mn vn. तो यहाँ पर आपको क्या देगा बेटा, अब हमें चाहिए इससे कि हम बेसिकली यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि फोर्स कितना इम्पोज कर रहे हैं हम उस बॉडी के ऊपर जिसकी वजह से हमारा जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज मूविंग. सो वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एंड यू नो फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ दैट फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, or you can say dp upon dt where p is simply momentum. So you have velocity. How can you find out the term of acceleration? m into a means acceleration चाहिए आपको. Then you have to differentiate this velocity with respect to time. Then it will give you m into dv upon dt is equal to m1 dv1 upon dt plus m2 dv2 upon dt plus mn dvn upon dt. अब इसके आगे जब हम इसको देखेंगे बेटा तो dv अपॉन dt आपको क्या बताता है, dv अपॉन dt will give you the acceleration. So m into a on the left hand side, that acceleration a, capital A is giving here you the acceleration of the center of mass, and small a1, a2, an are giving you the acceleration of individual particles. So what can you say, that F1 is basically equal to m1 into a1, that is force acting on the first particle. m2 a2 is the force acting on the second particle in the similar way. So you can write it here, m into a will be equal to f1 plus f2 plus fn. तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा कि टोटल मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी इक्वल टू vector sum of all the forces acting on the system of particles. Vector sum क्यों बोला बेटा, because force is a vector quantity. When you are going to add these all the vectors, then you have to follow the vector sum, and there are two rules of basically adding the two vectors, triangle law and parallelogram law. When you will add all these forces, then you have to keep all the two rules in mind. नेक्स्ट है हमारा बेटा कि जब हम उस F1 फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि F1 इज बेसिकली अ फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, दैट इज नॉट ओनली दैट फोर्स विच इज एक्टिंग और विच इज इम्पोजिंग बाय द एक्सटर्नल एजेंसी. देयर मे बी एनी अदर फोर्स, एनी अदर कंपोनेंट ऑफ F1 फोर्स just because of the remaining particles in the system like F2, F3, Fn इस तरह से. तो बेटा अब हम क्या देखेंगे, हम लेट अस सपोज कंसीडर कर रहे हैं हम कि कोई भी थर्ड पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्थ पार्टिकल की वजह से कितना फोर्स लगेगा. सो उसके ऊपर जो थर्ड जितना फोर्थ पे लगाएगा उतना ही फोर्स फोर्थ वाला जो पार्टिकल है वो इम्पोज करेगा थर्ड पे. तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमारी दोनों बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाई होगा. तो इंटरनल फोर्स पे हर एक पार्टिकल जितना दूसरे पे सुपर इम्पोज करता है वो आपस में क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे. तो इंटरनल फोर्स का जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. सो जो भी हमारा ये F फोर्स है दैट विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी. सो व्हाट यू कैन से दैट दिस फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू m इन A इज इक्वल टू F एक्सटर्नल. F एक्सटर्नल क्या है बेटा, जो भी टोटल नंबर ऑफ सिस्टम है उस पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस कितने अप्लाई हो रहे हैं उन सबका सम को रिप्रेजेंट कर रहा है F एक्सटर्नल. तो अब इक्वेशन हमारी क्या स्टेट कर रही है बेटा यहाँ पर, दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स एज इफ ऑल द मासेस ऑफ द सिस्टम was concentrated at the center of mass. अगर सारे के सारे मासेज को हम सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर कर ले और उसी के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं देन ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज वर अप्लाइड एट दैट पॉइंट ओनली. जहां पर हमारा सेंटर ऑफ मास हमने कंसीडर किया है, हम मानेंगे कि पूरा का पूरा जो सेंटर एक्सटर्नल फोर्स है वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारे इम्पोज हो रहे हैं. अब कुछ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं बेटा. जो हमने अभी भी बताया कि इंटरनल फोर्सेज के बारे में नॉलेज ना हो तब भी हम सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में देख सकते हैं. क्यों, क्योंकि इंटरनल फोर्सेज का कोई भी कंट्रीब्यूशन हमारे सेंटर ऑफ मास के मोशन के अंदर नहीं आता है.
यहाँ पर जो भी एफ एक्सटर्नल है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल टोटल एक्सटर्नल फोर्स। आगे हमारा बेटा कि एक्सटर्नल जो फोर्स है उसके अंदर हमारा इंटरनल मोशंस अलग अलग टाइप के हैं और वो प्योर रोटेशनल भी हो सकते हैं, प्योर ट्रांसलेशनल भी हो सकते हैं, रोटेशनल ट्रांसलेशनल भी हो सकते हैं। उनके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं नीडेड है, इसके लिए हमें केवल एक्सटर्नल फोर्स की नीड होगी। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई। इससे आगे की चीजें बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।